गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello everyone, welcoming you all on today's online session for accountancy, chapter number 4, that is journal. Before coming to the chapter, I'll revise chapter number 2, some rules of accounts, the golden rules of accounts. As you have seen over there are 3 types of accounts: personal accounts, real accounts and nominal accounts. Personal accounts, the rules were debit the receiver, credit the giver. Nominal account, real accounts, the rules were debit what comes in, credit what goes out. And nominal account, the rules were debit the expense and loss, credit the incomes and gains. Based on that only we will be preparing the journal. Okay. Journal, what do you mean by journal? Okay. Meaning of journal, it is a book of recording. Okay. It is the first book, the fundamental book as we can see. Okay. It is the first book of accounting based on the rules of debit and credit. Okay. A recording process. A recording process of accounting transactions. Process of accounting transactions. A recording process of accounting transactions based on rules of debit and credit. A recording process of accounting transactions based on the rules of debit and credit in the first book of accounts. In the first book of accounts is known as journal. Okay, the book in which the transactions are recorded is known as journal book. जिस बुक में ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है, that is called as journal book. It is a fundamental, basic and prime books of accounting based on the vouchers on daily basis. Based on the vouchers, we used to write the entries. Okay, in the journal. Based on the vouchers, we used to write the entries in the journal. We have already seen how to record the entries in the journal. Okay. First, we got to give the heading, journal entry in the books of so and so. For the month-wise, we used to record the entries. For the month of supposedly January 2019. Okay, then date, particulars, LF, ledger folio. Then debit rupees and credit rupees. Okay. The transactions now, you are very much able to classify the transactions, which account will be debited and which account will be credited. You already know how to pass the effects. We have already seen that. How to make the entries and how to pass the effect, how to record it. Okay. So now I will
record the entries, okay, without the columns. You got to pass the entries in the column itself. Okay, I'll roughly make the column. You got to prepare the column with scale and pencil. Okay, so the columns as such, date, then it is particulars, then it is LF, that's ledger folio, then debit rupees, and then credit rupees. Okay. Simple entries we have already seen, some of the simple entries. Okay, we have already seen that. Even I have given you the homework for that, for simple entries. Now we will see the combined entries. What do you mean by combined entries? Okay. Supposedly, in the particular day itself, we are doing more than one transaction. Suppose purchase goods of rupees 5,000 in cash. Purchase goods of rupees 5,000 in cash. Paid salary of rupees 4,000 in cash. Paid salary of rupees 4,000 in cash. Purchase furniture of rupees 3,000 in cash. पहले हमने क्या किया? गुड्स परचेस किया 5,000 का कैश में, सैलरी पे की 4,000 की कैश में, फर्नीचर परचेस किया 3,000 का कैश में. अब सबकी अगर अलग अलग आप एंट्री पास करें, यू कैन सी पहले की एंट्री आएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000. देन मैं एंट्री पास करके दिखाता हूं. पहले की आप एंट्री पास कर दिया अगर परचेस अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000. ऐसे लिखना कंपल्सरी है, पता है कैसे लिखना होता है? एक्सक्यूज मी. परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेस्ड. ओके, उसी सेम डेट पे सपोज हमने किया था सैलरी पे की थी. सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेस, ओके, 4,000 बीइंग सैलरी पेड इन कैश. उसके बाद सेम डेट पे आपने किया था फर्नीचर परचेस किया था. फर्नीचर कब से? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो तीन एंट्री में अलग अलग भी पास कर सकता हूं या उसकी मैं कंबाइन करता हूं. एज आई कैन सी कैश कैश कैश, सॉरी सैलरी टू कैश. एज आई कैन सी कैश कैश कैश. ओके, तीनों के क्रेडिट में कैश अवेलेबल. तो मैं इसे कंबाइन कर दूं तो मेरी एंट्री क्या बनेगी? परचेस अकाउंट डेबिट 5,000, सैलरी अकाउंट डेबिट 4,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 3,000, टू कैश अकाउंट 5, 9, 12,000. Being goods purchased, salary paid and furniture purchased in cash. तो हम इसको बोलते हैं combined entry. This we call it as combined entry. Okay, so we'll be learning about the combined entry. Simple entries we have already seen. Okay, then after this combined entry we will be learning about the trade discounts and cash discount कब देना है और कब नहीं देना है. So slowly, gradually, step by step, we'll be learning. Whatever homeworks I am giving it to you, kindly got to solve it out and send me upon proper time. 5 to 6 is your time for giving calls if you have any doubts, and 6 to 7 you have to compulsorily send me the homeworks according to the roll number groups, whatever is allotted to you. Okay. So based on the accounting rules, golden rules of accounting, you have to think about and you got to pass the entries. Okay, this is the main book of accounts. After this only, the next step will be for ledger. Okay, individually we are making the books for individual accounts, that is for ledger. Then from the ledger, we used to prepare the trial balance, and then afterwards, as the trial balance got tallied, okay, then we go for annual accounts in the month of March. So, it is the first primary, basic, fundamental books of accountancy
which you have to learn it very properly. ये आएगा तो आपका अकाउंट्स और इजी हो जाएगा. Not only I am talking about 11th standard, I am talking about accountancy. For the entire life of accountancy, you have to compulsorily know to pass the entries. Each and everywhere in accountancy, you must be knowing to pass the respective entries. So better start practicing the sums, solve the sums again and again. Try to understand the transactions which is given. What the transactions need to narrate, क्या बताना चाहता है वो आप समझे और बेस्ड ऑन दैट फिर इसकी एंट्री पास करें. ओके, थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन एंड सपोर्ट. स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग. कंटिन्यू वाचिंग द वीडियो टिल द एंड. थैंक्स अगेन. Illustration number 12. From the following transactions, write journal in the books of Sri Rajveer. 2014, August 1st, a business is commenced with an introduction of cash rupees 50,000, receivables rupees 25,000, liabilities rupees 10,000, and stock of goods rupees 15,000. Business चालू करे, ओनर कुछ भी लेके आता है, that become the capital. So, cash account debit 50,000, receivables account debit 25,000, receivable मतलब debtors 25,000, stock of goods account debit 15,000, टू लायबिलिटीज 10,000, रिमेनिंग जो भी आए वो बन जाएगा मेरा पे कैपिटल. तो रिमेनिंग कैपिटल में कितना आएगा 50 प्लस 25 75 प्लस 15 90 90 माइनस 10 कैपिटल विल बी 80,000. लेट अस चेक द आंसर. एज यू कैन सी कैपिटल इज 80,000. नेक्स्ट, डेट सेकेंड. अ 10% लोन ऑफ रुपीज 30,000 इज बोर्ड फ्रॉम श्रीमती. श्रीमती के पास से मैंने 10% पे लोन लिया है. लोन लिया मतलब मुझे कैश मिला है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू 10% लोन ऑफ श्रीमती. चेक इट. क्लियर. नेक्स्ट वन, थर्ड. लैपटॉप परचेज फ्रॉम जयवीर फॉर कैश 20,000 एंड पेड अदर एक्सपेंस रुपीज 500. ओके, तो अब मैंने कैश में लिया है वैसे भी, तो जयवीर का नाम तो कुछ काम का नहीं है. तो लैपटॉप अब कितने का हो गया 20,500 का हो गया. तो लैपटॉप आया मेरे पास, तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,500. Okay. Next. Open bank account with Dena Bank by depositing rupees 15,000. Okay. So Bank of Baroda या Dena Bank account debit या bank account debit to cash account 15,000 15,000. Okay. Let's check. Clear. Next. Date 5. Goods of 30,000 purchased from Royal Stores. ऑन क्रेडिट एट 10% क्रेडिट डिस्काउंट. मतलब 30,000 का आप 10% निकाल 3,000 रुपये माइनस किए तो 27,000 आ गया. ओके. रॉयल स्टोर्स पेड रेलवे फेयर रुपीज 200 एंड वेजेस रुपीज 1,000 ऑन अवर बिहाफ. रॉयल ने 200 रुपये का रेलवे फेयर पे किया और 1,000 रुपये का वेजेस पे किया, तो वो तो मेरे पास से लेगा. ओके. तो एंट्री क्या आएगी, आपने परचेस किया. सो परचेस अकाउंट डेबिट 27,000 का आपने गुड्स परचेस किया. रेलवे फ्राइट 200 डेबिट. Wages account debit 1,000 to Royal Stores 27,000 to Royal Stores 30,000. रेलवे फ्राइट आपको दिया है, मिसप्रिंट है यहाँ पे 2,000, यहाँ पे 200 नहीं आएगा 2,000 आएगा. लेट्स चेक द आंसर वंस, विल कम टू नो. यस, परचेस अकाउंट डेबिट 27,000, रेलवे फ्राइट जो ऊपर दिया 200 वो 200 नहीं है बेटा, मेक इट 2,000. ओके. वेजेस अकाउंट डेबिट 1,000 टू रॉयल स्टोर 30,000. पूरा मुझे इसको पे करना पड़ेगा बिकॉज उसने एक्सपेंसेस मेरे बिहाफ पे किए हैं, दैट्स वाई. नंबर 6. गुड्स परचेज फ्रॉम रॉयल स्टोर्स ट्रेडर्स. जो रॉयल ट्रेडर्स के पास है, मतलब जो ऊपर नंबर 5 पे जो परचेज किया था, उसमें से आउट ऑफ विच गुड्स आर रुपीज 15,000 मैंने बेचा भगवती को. ओके. 30 का हम कौन है यहाँ पे, राजवीर. हम राजवीर है. हमने यहाँ पे रॉयल स्टोर्स के पास से परचेज किया था 30,000 का गुड्स. उसमें से मैंने 15,000 के गुड्स मैंने बेचे हैं भगवती को. तो 15,000 का गुड्स बेचा 10% ट्रेड डिस्काउंट में. तो 15,000 का 10% मतलब 13,500. 1,500 माइनस किए, रिमेनिंग इज 13,500. उसमें 20% प्रॉफिट अगर मैं प्लस करता हूँ तो अमाउंट आता है मेरा पे 2,700. तो उसको प्लस किया तो टोटल अमाउंट बना मेरा 16,200 का. ओके. वो मैंने बेचा भगवती को और इसके लिए रेलवे फ्राइट मैंने 1,000 और वेजेस मैंने पे किए ऑन देयर बिहाफ. ओके. किसको मिला गुड्स, भगवती को. कितने का गुड्स बन गया, 16,200 का. प्लस मुझे उसके पास से 1,000 रुपये का रेलवे फ्राइट और 500 का वेजेस भी तो लेना है.
तो भगवती इज द रिसीवर, तो भगवती अकाउंट डेबिट 17,700 टू सेल्स अकाउंट, सेल्स की अमाउंट थी 16,200 एंड टू कैश अकाउंट जो उसने एक्सपेंस यहाँ पे किए थे 1,500 रुपीज़ के, तो टू कैश अकाउंट. विद द हेल्प ऑफ वीडियो आई हैव सॉल्व दिस, आई शोन द कैलकुलेशन इन द बोर्ड, चेक इट आउट वंस. ऑन डेट 5 तारीख को मैंने रॉयल ट्रेडर्स के पास से 30,000 का मैंने यहाँ पे गुड्स परचेस किया था. ठीक है, इसमें से 6 तारीख को मैंने 15,000 के गुड्स, उसमें 20% प्रॉफिट प्लस किया. ओके, 15,000 पे 20% प्रॉफिट प्लस किया, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, तो पहले इसमें से ट्रेड डिस्काउंट कर लेते हैं. पहले आपको दिख रहा है ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 1,500 का ट्रेड डिस्काउंट माइनस. ओके, तो आ गया 13,500. इसमें प्लस किया 20% प्रॉफिट, तो इसका 20% प्रॉफिट मुझे इस पर प्लस करना है. तो अमाउंट कितना आ जाएगा 13,500 प्लस प्रॉफिट का अमाउंट 2,700, तो 16,200 में मैंने सेल किया उसका गुड्स. यहाँ पे भगवती को सेल किया मैंने यहाँ पे 16,200 में. फिर जो भी उसने यहाँ पे एक्सपेंस यहाँ पे इंकर यहाँ पे किए होंगे ऑन आवर बिहाफ, तो एंट्री क्या आ जाएगी फिर इसकी यहाँ पे. So now it is very much clear. Number 6 entry. Now coming to date number 7. Goods are rupees 50,000 purchased from Kruti at 10% trade discount. तो कितने का हो गया 50,000 माइनस 10% मतलब 45,000 हो जाएगा. एंड 10% कैश डिस्काउंट. ओके, हाफ अमाउंट इज पेड बाय चेक. ओके, इस पर भी हाफ करना है, तो 45,000 का पहले आप 2 टुकड़े कर लीजिए. 22,500, 22,500. एक के ऊपर आप नाम लिख दीजिए कृति का, और सेकेंड का 22,500 रुपये आपको देना. 10% पेमेंट हो चुका है चेक से, इसलिए चेक से क्या है मतलब फिर भी पेमेंट हो चुका है. इट्स नॉट नेसेसरी कैश पेमेंट ही हो, चेक भी एक पेमेंट ही होता है. तो बाकी के 22,500 पे 10% माइनस करोगे, 2250 माइनस करोगे, तो रिमेनिंग अमाउंट आएगा 22,250. तो 22,250 का चेक, 2250 का डिस्काउंट, कृति आ गई मेरी 22,500 की, और परचेस हो गया मेरा पे 45,000. तो एंट्री विल बी परचेस अकाउंट डेबिट 45,000 to Kruti account 22,500 to bank account 20,250 20,250 and to discount account 2250. Let us check the answer. Also it is very much clear. Okay, now coming to number 8. गुड्स सोल्ड टू भगवती, जो मैंने भगवती को गुड्स बेचा था उसने उसमें से मुझे वापस कर दिया 540 का गुड्स. ध्यान से करना, सुन लेना. भगवती ने मुझे वापस किया. भगवती को मैंने कितना गुड्स सेल किया था 15,000 का मेरा गुड्स था, 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया था, 20% प्रॉफिट प्लस किया था. वो जो मैंने गुड्स 16,200 का जो मैंने गुड्स भगवती को मैंने बेचा था, कब बेचा था उसको मैंने भगवती का गुड्स 6 तारीख को मैंने बेचा था. उसमें से उसने मुझे 540 का गुड्स वापस कर दिया, तो मेरे लिए सेल्स रिटर्न हो गया. गुड्स आए मेरे पास, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू भगवती 540. लेकिन वो गुड्स मैंने रॉयल स्टोर्स को वापस किए. अब मैंने रॉयल के पास से जो गुड्स मैंने परचेस किए थे उसके अंदर से मैंने उसमें प्रॉफिट प्लस किया था. ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया था, उसके बाद जाके मैंने भगवती को बेचा था. अब जब भगवती मुझे गुड्स वापस करेगी 540 का, तो उसमें से मुझे ट्रेड डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, उसमें से मुझे यहाँ पे प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. फिर जो अमाउंट है कि वो मैं रॉयल को वापस करूँगा. मैं क्यों प्रॉफिट वाला अमाउंट रॉयल को वापस करूँ? तो वॉच द वीडियो, कंटिन्यू विद वॉचिंग द वीडियो. आई हैव सॉल्व्ड द कैलकुलेशन ऑन द बोर्ड इटसेल्फ, देन आई विल बी टेलिंग यू दिस एंट्री. एंट्री आ जाएगी भगवती अकाउंट डेबिट 17,700 टू सेल्स अकाउंट 16,200 टू कैश अकाउंट, जो भी उसने एक्सपेंस यहाँ पे किए थे वो टू कैश अकाउंट के नाम से हम लोग लिख देंगे एंट्रीज. ओके, मैंने वापस यहाँ पे कर दिया रॉयल ट्रेडर्स को. अब रॉयल ट्रेडर्स की बात करें, सपोजिटली मैंने गुड्स उसके पास से परचेस किया था 100 रुपए का, सपोजिटली 100 का परचेस किया था. ठीक है, उसने मुझे गुड्स बेचा था 20% प्रॉफिट में. रॉयल स्टोर्स ने गुड्स बेचा भगवती को 20% प्रॉफिट में, राइट. तो सपोज रॉयल स्टोर्स के लिए गुड्स की प्राइस थी 100 रुपए की, उसने 20% प्रॉफिट इसमें प्लस किया, तो मतलब 120 का गुड्स था जो उसने 120 का गुड्स बेचा भगवती को. लेकिन इस पर ट्रेड डिस्काउंट भी था 10%, तो 12 रुपीज माइनस करते तो 108 का गुड्स. तो भगवती ने जो मुझे गुड्स वापस किया है वो 108 के प्राइस वाला है. जो भगवती ने जो गुड्स मुझे वापस किया है वो 108 के प्राइस वाला है. सो अगर 108 अगर
540 होता है तो रॉयल के लिए तो 100 का था, तो वो कितना होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे हम यहाँ पे 540 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 108, तो 108 1 जा 108 5 जा, तो हो गए 500। तो मैं यहाँ पे 500 रुपए के गुड्स यहाँ पे वापस करूंगा रॉयल स्टोर्स को। रिटर्न की एंट्री अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, रॉयल स्टोर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। जब भगवती ने मुझे वापस किया था तब मैंने एंट्री पास क्या की थी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू भगवती 540 का था। उसमें से मैंने प्रॉफिट का मार्जिन निकाल के आपका हिसाब बताया, मैंने प्रॉफिट का मार्जिन निकाल दिया उसमें से, फिर मैंने वो गुड्स वापस किए रॉयल स्टोर्स को। तो रॉयल स्टोर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 500। हम यहाँ पे बीच में एक पार्टी है, हमने रॉयल स्टोर्स के पास से खरीदा था, बेचा था मैंने भगवती को, भगवती ने मुझे वापस किया, उसमें से मैंने प्रॉफिट का हिस्सा निकाल के मैंने रॉयल्स को वापस यहाँ पे कर दिया। ओके, नाउ इट इज वेरी मच क्लियर कि आपके पास 500 कैसे आया। सो रॉयल स्टोर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न एंट्री भी आपने देख ली 500 की। ओके, आप 500 से 540 तक पहुंचना चाहते हो तो ये भी पॉसिबल है। ओके, अब 500 पे अगर आप कर देते हो 20%, ओके, तो अमाउंट विल बी 520%। ओके, आपको अमाउंट अवेलेबल यहाँ पे हो जाएगा 20% प्रॉफिट। पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, फिर प्रॉफिट को प्लस करना है। 500 का ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस किया तो हो गया 450, उस पर आप 20% प्रॉफिट ऐड करो 90 रुपीज़, तो हो गया 540। वापस समझाता हूँ, 500 का अमाउंट है, उससे आपको 540 पहुँचना है वापस से। ठीक है, तो 500 में रॉयल स्टोर्स के पास था 500 का गुड्स, वो ट्रेड डिस्काउंट था उसमें 10%, तो 10% माइनस किया तो 500 का 10% 50 माइनस किया 450 आया, उसमें मैंने 20% प्रॉफिट प्लस किया 90 रुपीज़, तो हो गया 540 का गुड्स। ओके, कमिंग टू नंबर 9, गुड्स आर रुपीज़ 15,000 आफ्टर एडिंग 20% प्रॉफिट सोल्ड टू निराली एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 15,000 का 20% प्रॉफिट मतलब कि 3,000 का प्रॉफिट, तो हो गया 18,000। 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया 1800 माइनस, तो हो गया 16,200 एंड 10% कैश डिस्काउंट। ओके, तो 16,200 का गुड्स था, उसका 10% नहीं, हाफ अमाउंट इज इशूड इन कैश, मतलब आधा मिला है कैश, आधा बाकी है। तो गुड्स का हिसाब कर लिया मैंने यहाँ पे 16,200 का मैंने गुड्स यहाँ पे सेल किया है, उसका आधा कर दो 8100, आधा कर दो 8100। एक आधे पे लिख दो नाम उसका निराली का, एक आधे पे 8100 पे आप डिस्काउंट करना है 10%, दैट इज 810, तो रिमेनिंग अमाउंट आपका कैश में आ जाएगा। ओके, लेट अस सी, आई होप सो एंट्री आएगी निराली अकाउंट डेबिट 8100 टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट में आएगा 810 और निराली में 7290 के अराउंड अमाउंट आएगा, और टू सेल्स अकाउंट 16,200। लेट मी चेक द आंसर। निराली अकाउंट डेबिट 8100, कैश अकाउंट 7290, डिस्काउंट अकाउंट 810 and to sales account 16,200. Okay, coming to number 10, goods are rupees 20,000 after adding 30% profit sold to Bhomik at 10% rate discount। तो 20,000 का 30% मतलब 6,000, तो 26,000 का मैंने गुड्स बेचा, 10% ट्रेड डिस्काउंट तो 2600 माइनस, तो 23,400 एट 10% कैश डिस्काउंट इफ द अमाउंट इज पेड इन 10 days, मतलब अभी पेमेंट नहीं किया है, तो भौमिक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 23,400। लेट अस चेक। क्लियर, नेक्स्ट। received paid 1,500 for advertisement bill of Gujarat Samachar, तो advertisement account debit to cash account। Date number 12, received personal dividend of rupees 800 which is deposited in the bank account of the business। Okay, आपको पर्सनल डिविडेंड मिली थी, वो आपने बिजनेस में डाल दिया, बिजनेस के बैंक में डाल दिया, तो बैंक विद द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट। इन शॉर्ट आप वो पैसा बिजनेस में लेकर आए तो आपके लिए बना कैपिटल, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लेट मी चेक इट वंस अगेन। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ओके, डेट नंबर 13, निराली रिटर्न गुड्स वापस 650। निराली को जो मैंने गुड्स सेल किया था 9 तारीख को, उसमें से 650 का गुड्स मुझे वापस कर दिया। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू निराली अकाउंट 650। नंबर 14, गुड्स और रुपीज 400 रिसीव्ड एज फ्री सैंपल, तो ये तो नॉन इकोनॉमिक हो गया।
विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू कस्टमर इन फ्री फॉर एडवर्टाइजमेंट। वन सेकेंड, ये नॉन इकोनॉमिक का नॉन इकोनॉमिक ही रहेगा। बस फ्री में मिला हुआ माल आपने फ्री में दिया तो उससे कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। हाँ, उसको बेच देते तो कैश मिलता तो मैं उसकी एंट्री पास करता, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बट उसको मैंने सेल तो किया नहीं है, तो नो है, नॉन इकोनॉमिक। 15, अ चेक ऑफ हाफ अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम भौमिक एंड कैश डिस्काउंट अलाउड। भौमिक को, जहाँ तक मुझे याद है, भौमिक को मैंने सेल किया था 23,400 का, ठीक है। उसका आधा करोगे आपको शायद 11,700 आएगा। कैश डिस्काउंट कितना था? 10%। भौमिक ने अब मुझे पेमेंट किया है, ओके, तो मतलब चेक से पेमेंट किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू भौमिक अकाउंट। डेट 15, बैंक अकाउंट डेबिट 10530, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1170 टू भौमिक 11700। 23,400 का मैंने उसको गुड सेल किया था, ये ना नंबर 10 पे। उसका आधा 11700 पेमेंट किया उसने, 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया, तो उसको मैंने यहाँ पर 10% का कैश डिस्काउंट अवेलेबल यहाँ पे करवा दिया है, ओके। Okay, today we'll do till 15th. From 16th, we'll carry forward in the next lecture. Thanks for the cooperation and support. Solve all the illustrations again, please. And main thing, solve these illustrations again and again. Because यहाँ पे प्रॉफिट में से आपको अमाउंट निकालना था, घूम के वापस आना था। रॉयल स्टोर्स वाला जो है, जो इसके इंटरलिंक में है, और ये जो निराली वाला भौमिक निराली, सॉरी, ये निराली वाला कृति वाला जो है, ये भी हमको वापस करना पड़ेगा। सो फोकस क्या करना है, कैसे करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंटेंसेस, कैसे आंसर्स लेके आने हैं, जस्ट प्रैक्टिस इट एंड जस्ट यूज द कैलकुलेटर प्रॉपरली, तो आपको आंसर आने स्टार्ट यहाँ पे हो जाएंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू ऑल वंस अगेन।